Hello everyone, welcome to EduTap, and guys, welcome to this video where we will be discussing, is it really possible to score 70 plus marks in the ESI part of the RBI Grade B Phase 2 examination. Now the first question that will be coming to your mind is it really possible to score 70 plus marks in ESI? Because if I talk about the previous year examination, the cutoff was on a lower side. ठीक है, और बच्चों के मार्क्स भी बहुत कम आए क्योंकि पेपर बहुत टफ था. आई कुड नॉट सी ए स्टूडेंट हु हैज स्कोर्ड 70 मार्क्स इन द ईएसआई पार्ट. ठीक है जी, मुश्किल था. तो अगर पेपर मुश्किल साइड पे आया तो क्या एक स्कोर स्टैंडर्ड हमें 70 का रखना है? Guys, it totally depends on the exam. अगर if it is on a tougher side, the cutoff will be lower down. पर तब आपका टारगेट 70 को कम करके I would be saying तब आपके माइंड में टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 60 तो माइंड में होना ही चाहिए. ठीक है जी, 60 करोगे तब जाके आप कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्टेबल रेंज ऑफ 50 टू 55 में आ पाओगे. बट अगर लेट से पेपर थोड़ा सा इजियर साइड पे आया है देन यू कैन स्कोर 70 प्लस मार्क्स ऑल्सो इन ईएसआई. ओके, बिकॉज इट टोटली डिपेंड्स. जब आप बैठोगे एग्जाम में कोई भी मार्क्स सेट करके बिल्कुल मत बैठ जाना कि 70 है तो 70 ही आने चाहिए. नहीं जी, सिट इन द एग्जाम, एनालाइज के किस तरह का पेपर है. टफर है तो कट ऑफ गिरेगा, बट एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आपको पेपर अटेम्प्ट करके आना है. नाउ व्हाट कुड बी द बेटर अटेम्प्टेशन? लेट्स डिस्कस देम स्टेप बाय स्टेप. फर्स्ट पॉइंट इज breakage of the ESI part, because when I talk about ESI it is baked into two parts. That is first of all economics and second part is social issues. तो अब इसमें से वेटेज किसकी ज्यादा है? If I say if I go by the examination, both have somehow equal weightage. ठीक है, इकोनॉमिक्स इफ आई टॉक अबाउट द क्वेश्चंस विल बी इन द रेंज ऑफ 40 टू 45 मार्क्स, जहां पे इफ आई टॉक अबाउट द सोशल इश्यूज इट इज इन द रेंज ऑफ 55 टू 60 मार्क्स. तो 5-10 नंबर बहुत ज्यादा नहीं है, बट मैं फिर भी बोलूंगा कि आपको दोनों को इक्वल वेटेज देनी है. ठीक है जी, तो आई विल नॉट से लीव दिस पार्ट और लीव दिस पार्ट. यू हैव टू प्रिपेयर देम थॉरोली. पॉइंट नंबर 1, थॉरोली प्रिपेयर करना है. अब let's talk about further here with respect to the objective and subjective paper that will be asked in the examination. So with respect to objective paper guys, that we have seen in the past 2 years examination, it is heavily dominated by current affairs. Static के questions कम आते हैं, but that does not mean you should leave the static part. I would advise you should cover the important chapters of static, the question, so that you have a basic understanding. What are these important chapters? These chapters are inflation, balance of payment, monetary policy, fiscal policy, measurement of growth, sustainable development and international economic institutions. These are the topics you must cover. ठीक है, but यहाँ पे एक condition क्या है? Read these topics, but यहाँ पे स्टैटिक के MCQs आपको बहुत कम प्रैक्टिस करने हैं. Do not have to practice lot and lot of MCQs. बहुत कम करने हैं. प्रैक्टिस कहां पे करने हैं MCQs? That is with respect to current affairs. That's the second part you should remember कि ऑब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपको करंट अफेयर्स अच्छी तरह प्रिपेयर करना है. Now when I talk about the current affairs guys, basically we divide the current affairs into 3 prominent pillars, that is schemes, reports and current affairs, from which the schemes is playing a very important role. Now you must be feeling कि गुरकिरत सर आए हैं तो सर तो इंपॉर्टेंट स्कीम्स बता देंगे, इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बता देंगे और ये मैं पढ़ लूं. बट लेट मी बी ऑनेस्ट हियर गाइस, जिस हिसाब से पेपर आ रहा है ना आपका, तो पेपर मुश्किल होने वाला है एंड इट्स डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट व्हाट शुड बी द थिंग हियर. ऑनेस्टली बता रहा हूं, मैं आपको बोलूंगा कि आप 5 चीजें पढ़ जाओ और क्वेश्चन नहीं आएगा. लेट मी टेल यू एन एग्जांपल हियर. मैं आपको बोलूंगा 5 प्रोमिनेंट पीसेस क्या होती हैं. यू शुड नो अबाउट द मिनिस्ट्री ऑफ द स्कीम, the eligible beneficiaries, type of a scheme, then you should know about the tenure of the scheme. ठीक है जी, और की फीचर्स. ये 5 प्रोमिनेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए. ठीक है जी, जिसको आप अच्छी तरह रट लोगे. फिर मैं आपको कुछ मिनिस्ट्रीज बोल दूंगा कि यार आप इनको पढ़ लीजिए. ये एक लास्ट सॉर्ट ऑफ रिजॉर्ट है, बट ओनली नहीं है क्योंकि बहुत इन डेप्थ पढ़ना है. कैसे? मैं एग्जांपल दिखाता हूं. जैसे प्रीवियस ईयर थे वहां से क्वेश्चन ऑन आदर्श ग्राम योजना. एक पैराग्राफ आया था आदर्श ग्राम योजना के ऊपर. देखो क्वेश्चन क्या है. पहला क्वेश्चन क्या पूछा? Which among the following state was not included? तो मैंने क्या बोला कि ये 5 पिलर पढ़ लो. पहला ही क्वेश्चन जो मैंने 5 पिलर बोले थे उसमें से नहीं आया कि कौन सी स्टेट नॉट इंक्लूडेड. तो बैकग्राउंड से आया क्वेश्चन, 2 नंबर कट गए. दूसरा, आदर्श ग्राम योजना के ऊपर कौन से क्रिटिकल मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स हैं. ठीक है जी, एज पार्ट ऑफ वेरियस सेक्टर्स. दूसरा पार्ट आया.
ठीक है जी। अब अगर आपने बहुत इन डेप्थ पढ़ा है इसके बारे में देन तो यू शुड नो, अदरवाइज ये क्वेश्चन भी कट गया, ऊपर ऊपर से पढ़ के तो बिल्कुल ही खत्म होगा, ये वाला क्वेश्चन भी नहीं होगा। थर्ड, कौन सी डिस्ट्रिक्ट ने बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड जीता है? अगर करंट डेवलपमेंट पढ़ा है तो होगा, नहीं तो ये क्वेश्चन भी नहीं होगा। तो मतलब आपका 6 मार्क्स एट रिस्क आ गए। तो इसका मतलब क्या है, व्हेन यू आर गोइंग विद द स्कीम, द ओनली थिंग दैट मैंने स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, डेप्थ। आई विल नॉट से कि ऊपर ऊपर से पढ़ लो, आई विल से स्कीम पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छी तरह पढ़ के जाना, चाहे वो केस स्टडी के लिए हो चाहे किसी चीज के लिए भी हो। देयर इज नो शॉर्टकट हियर। स्पेशली मेरे स्टूडेंट सर आज से बूस्टर पढ़ जाते हैं तो हो जाएगा, नहीं होने वाला। आपको स्कीम स्टेप बहुत अच्छी तरह पढ़ना है, दैट्स द थिंग हियर। ठीक है, बहुत अच्छी तरह पढ़िए, अगर ऊपर से पढ़ रहे हो तो नहीं होगा। एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। लेट्स टॉक अबाउट नाउ द करंट अफेयर्स पार्ट और रिपोर्ट्स पार्ट। अगर मैं आपको करंट अफेयर्स की बात करता हूं तो आई ऑलवेज से कि हेल्थ निकल गया, एजुकेशन निकल गया है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, एनवायरमेंटल इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, ग्लोबलाइजेशन, जेंडर इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, बट देन ऑल्सो कि कोई डायलॉग हुआ है सर, छोड़ दें सर, क्यों पढ़ना है? कोई इंडिया एग्रीमेंट ही हुआ, छोड़ देते हैं सर, इंडिया न्यूजीलैंड में एग्रीमेंट हुआ है, छोड़ देते हैं, क्यों पूछेगा? उन्होंने पूछा रायसीना डायलॉग, विच नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग। रायसीना डायलॉग पे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी आपको 2 मार्कर, 1 मार्कर भी 2 मार्कर, और अलग अलग चीजें, कौन सी थीम नहीं है, कौन से डायलॉग की बात हो रही है। तो दिस टेल्स अस कि यार एग्जामिनेशन इज एक्चुअली ऑन एन अनप्रेडिक्टेबल लाइन। तो आप अनप्रेडिक्टेबल एंड एक्सपेक्टेड लेवल से जाओ, कोई एक्सपेक्टेशन लेके मत जाना कि यार यही 4 टॉपिक और इन्हीं में से पेपर आने वाला है। आपको हर चीज अच्छी तरह पढ़नी है, दैट्स द ऑनेस्ट रियलिटी हियर। ठीक है, और प्लस एक चीज और बताता हूं रिपोर्ट्स के बारे में। मैं बोल रहा हूं रिपोर्ट्स आप 8 मंथ्स पढ़िए, विच आई से ऑनेस्टली कि पढ़नी चाहिए। अब यहां पे क्वेश्चन है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, जो कि 2 साल पहले रिलीज हुआ था। अब आप लोग सोचोगे सर आप तो डराने आए हो वीडियो में कि यार ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं, तो करना क्या है? देखो मैं आपको ऑनेस्ट रियलिटी बता रहा हूं यार, कि आपको डरना नहीं है, मतलब एक ही है कि आपको अच्छी तरह पढ़ना है। जैसे ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वाला क्वेश्चन आया था, अब ये 2 साल पुरानी रिपोर्ट किसी को नहीं याद, तो ये क्वेश्चन पे पैनिक नहीं होना कि नहीं आता, छोड़ दो। रायसीना डायलॉग वाले में पैनिक नहीं होना कि यार क्या पूछ लिया उसने, पूछ लिया अब उसने, अब मुझे जितना आता है मुझे वो आंसर देना है। दिस इज द थिंग आई हैव टू डू हियर। तो इसका मतलब फिर मैं बता रहा हूं, इन डेप्थ पढ़ना बहुत जरूरी है यार। ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो तो भाई अल्लाह मेहरबान हो जाए तो नंबर आ जाएंगे, नहीं तो नहीं आने वाले। ये ऑनेस्टली है। ये था आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट कि अच्छी तरह पढ़ना पड़ेगा। देन लेट्स टॉक अबाउट द डिस्क्रिप्टिव पार्ट हियर। जब आप डिस्क्रिप्टिव की बात करते हो तो मेनी ऑफ अस ऑलवेज थॉट कि यार स्टैटिक पढ़ जाते हैं, ठीक है, और सोशल इश्यूज के टॉपिक्स छोड़ जाते हैं। जैसे मैंने आपको टॉपिक्स बताए थे अभी, यू विल बी सीइंग कि सर ने बोला ये टॉपिक्स पढ़ के जाने हैं, बट गाइस माइंड मी अनदर थिंग, आई एम नॉट सेइंग यू शुड लीव द अदर टॉपिक्स। ये टॉपिक्स आपको पढ़ने बट बाकी छोड़ने नहीं। क्यों? क्योंकि सोशल इश्यूज के जो टॉपिक्स हैं लाइक पॉवर्टी, अर्बनाइजेशन, माइग्रेशन, तो उससे भी तो पूछ सकता है ना यार। वो आपको टाइप ऑफ पॉवर्टी पूछ ले एग्जामिनेशन में, तो क्या करोगे? बैठ जाओगे कि यार किधर से आए क्वेश्चन, मैंने पढ़ा ही नहीं था टॉपिक, मैं तो ये टॉपिक पढ़ के गया था। अर्बनाइजेशन पूछ ले, क्या करोगे? छोड़ दोगे। तो ये चीज नहीं है। तो आपको हर टॉपिक को टच करना है। यू शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल इश्यूज टॉपिक ऑल्सो। ठीक है जी। और जो आपका पेपर में सेटरन है वहां पे यू आर नाउ सीटिंग अ करंट स्टैट मिक्स, करंट और स्टैटिक का मिक्सचर आ रहा है आपको एग्जामिनेशन में। ठीक है जी। एंड हाउ यू शुड अप्रोच द क्वेश्चंस, लेट्स डिस्कस इट नाउ। कैसे करना है देखिए, सबसे पहले इफ आई शो यू द क्वेश्चंस दैट आर बी आस्क्ड। अब ये क्वेश्चन जो है ना बुकिश तो नहीं है यार। अगर आप कोई बुक पढ़ के बैठे हो एंड यू से कि सारे क्वेश्चन बुक में से होंगे, नहीं होने वाले। इट्स अ कंप्लीटली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आपकी एनालिटिकल एबिलिटी और एप्लीकेशन वहां पे चेक होगी। ठीक है, बट आपको पैनिक नहीं करना। ठीक है जी। नाउ व्हाट आई विल से, सी यहां पे मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिखाए हैं जो कि मैंने प्रीवियस पेपर से निकाले हैं। ठीक है, ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ 2022। अब यहां पे 2 क्वेश्चन ऐसे अगर आपने अच्छी तरह पढ़ा है तो दैट यू कैन अटेम्प्ट, दैट इज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। एनबीएफसीज क्या होती हैं, कैसे डिफरेंट है, कैसे 5 टाइप्स ऑफ एनबीएफसीज, दैट यू कैन अटेम्प्ट, दैट इज बेसिक इकोनॉमिक्स। नाउ लुक एट द 3rd and 4th नंबर क्वेश्चन। अब यहां पे कोई बुक कुछ नहीं हेल्प करने वाला। क्वेश्चन क्या है? अर्बनाइजेशन स्प्रेड हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है कास्ट बेस पे, जेंडर बेस पे। ठीक है जी। इज दिस ओपिनियन, इन दिस ओपिनियन हाउ विल यू जस्टिफाई द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी। अब यहां पे लुकिंग एट दिस क्वेश्चन यू शुड नॉट पैनिक। क्या होगा? पैनिक हो गया यार ये तो पढ़ा ही नहीं है। अब देखो अगर नहीं पढ़ा तो यहां पे स्मार्टनेस क्या है कि पेपर को कैसे स्मार्टली अप्रोच करना है, दैट इज द थिंग। जितना आया है, जितना पढ़ा है उतना लिखाओ, छोड़ो मत कुछ चीज को, कुछ तो नंबर देगा ना एग्जामिनर। तो ये चीज से
डू नॉट गेट पैनिक, बी काम एंड स्टार्ट थिंकिंग। जो पढ़ा है उसको लिख दो। सेम सी हियर, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। अब रूरल एंटरप्रेन्योरशिप पे आपने हो सकता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप टर्म नहीं पढ़ी, बट आपने उसके रिगार्डिंग कुछ ना कुछ पढ़ा है, कोई रिपोर्ट पढ़ी है, कोई पॉलिसी पढ़ी है, कोई स्कीम पढ़ी है, तो वो यहां पे आप ऐड कर सकते हो। दिस इज द थिंग कि स्मार्टनेस और कामनेस से आपको ये क्वेश्चंस लिखने हैं, ठीक है। और सिर्फ इकोनॉमिक स्टैटिक ही पढ़ना है नहीं, आपको करंट को मिक्स करना और उसको एक्सप्रेस करना आपको आना चाहिए इन द एग्जामिनेशन। नाउ इज हाउ यू कैन स्कोर गुड इन द डिस्क्रिप्टिव पार्ट। ऑब्जेक्टिव में तो मैंने आपको बोला आपको थॉरोली पढ़ना पड़ेगा, देन यू कैन स्कोर, बिकॉज आता है तो आता है, नहीं आता तो छोड़ दो, तो ये वाला पंडा है। बट डिस्क्रिप्टिव में कैसे कर सकते हो बेटर? डिस्क्रिप्टिव में देखिए, आप मैं आपको बोलूंगा एक ही चीज, आई वुड एडवाइज यू टू फॉलो दीस 6 पिलर्स। 6 पिलर्स आर व्हाट? ठीक है, मेक द टॉपिक वाइज फॉर्डर मटेरियल, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ रिफॉर्म दैट हैज बीन डन विद रिस्पेक्ट टू दैट टॉपिक, क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए हैं या डिस्कस हो रहे हैं, दैट यू शुड रिमेंबर। उसके रिगार्डिंग कोई करंट डेवलपमेंट हुआ है तो करंट डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको पूरी मैगजीन उस वहां पे लिख देने, नहीं, आपको आइडिया होना चाहिए, यू शुड रिप्रोड्यूस दैट थिंग, दैट्स द मेन पॉइंट। रिपोर्ट्स में डाटा हैं, फैक्ट्स हैं, दैट यू कैन कोट दियो, ठीक है जी। फिर इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल एजेंडा ऑफ दैट स्पेसिफिक इनिशिएटिव, स्कीम्स जो उसके रिगार्डिंग है तो वहां पे आप उन स्कीम्स को कोट कर सकते हो, ठीक है। कोट करना है, पूरी स्कीम नहीं लिखनी है, ये समझो। आपने सब कुछ पढ़ा है, बस उसको किस तरह एक ढांचे में डाल के लिखना, वो मेन चीज आपको करनी है। देन इज द एग्जांपल्स दैट यू कैन कोट हियर। So this is the steps guys you should follow for the ESI part. And again one thing I will be saying guys कि आपको पढ़ना तो यार thoroughly है। Let me be honest with you, ये नहीं कहूंगा कि यार ये टॉपिक पढ़ लो, ये टॉपिक पढ़ लो, सब कुछ पढ़ो, thoroughly पढ़ो। दूसरा पॉइंट, इन डेप्थ पढ़ के जाना, डू नॉट रीड इट फ्रॉम जस्ट गिव मियर रीडिंग से नहीं होने वाला। और तीसरा प्रोमिनेंट पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यार आपको डरना नहीं है, ठीक है। यू शुड बी काम एंड जितना आता है उस हिसाब से उस पेपर को उस तरह करके आओ। ये 3 प्रोमिनेंट चीजें जो आपको करनी है। और इस चीज के लिए एरोटैब आपकी हेल्प कैसे कर रहा है दोस्तों? तो वी आर प्रोवाइडिंग यू अ लाइव क्रैश कोर्स वेयर द लाइव क्लासेस विल बी देयर, ठीक है जी। माइंड मैप्स, करंट अफेयर्स, जो चीजें मैंने आपको बोला है कि इन डेप्थ पढ़ना है, क्या क्या चीजें रिलेटेबल हैं, वो सब आपको क्रैश कोर्स में मिलेगा। अलॉन्ग विद दैट, फॉर प्रैक्टिसिंग ऑफ द एमसीक्यूज वी आर प्रोवाइडिंग द टेस्ट सीरीज हियर, ठीक है जी, फॉर विच the link is given in the description below, so you can click on that link and you can जो भी क्वेरी है वहां से पूछ सकते हो। So this was about your video guys, ठीक है जी, where we have discussed that what could be the possible strategy to score 70+ marks in the ESI. So wishing you all the best for the examination. Keep preparing hard, keep working hard. Bye bye.